Hi guys, how are you all doing? I, Today this video is being formed for those who are in class 10th and 12th this year and will be attempting their board exams in 2021. And the reason why I'm making this video for them in this time of lockdown is because I've been seeing that the students are really not able to focus much because of so much of uncertainty which is there around us. एंड कोई मतलब अभी है नहीं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा, चलता जा रहा है, दिस विल कंटिन्यू. द ओनली थिंग व्हिच आई कैन से इज आई डोंट नो इज व्हेन दिस लॉकडाउन विल एंड, बट द ओनली थिंग व्हिच आई नो is also that there will be for sure exams in March next year, and 10th and 12th is the year where you have to focus really from the start, because अगर आप बहुत बाद में जागोगे तब इतना सारा कोर्स हो चुका होगा जो आप वापस कवर अप नहीं कर सकोगे. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम आज जाग जाए, हम आज कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि हम प्रॉपरली पढ़ पाए. आई नो देयर इज लॉट ऑफ दिस कंफ्यूजन, कब लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल्स में सही से पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन क्लासेस समझ नहीं आ रही, सो ऑन एंड सो फॉर. बट बिलीव मी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर व्हेन मार्च विल कम, ये सब भूल चुके होंगे सब लोग. तो तब कोई नहीं सोचेगा कि अरे 3 महीने 6 महीने लॉकडाउन था तो बच्चे पढ़ नहीं पाए. तब कोई भी ये सब बातें नहीं सोच रहा होगा, एंड हेंस वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस टाइम. एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. This video is to tell you how you can do some three things to actually use this time to the best of your potential, and really make sure that by the end of this year you are going to maybe top the school. So how you can do that is you have to follow these three rules. Rule number one is you have to aim. We cannot be a headless chicken and running all around the corners. We have to have a strong aim inside our mind. And believe me, this aim is what sets successful people apart from those who are not. एंड ये एम ही सब कुछ डिटरमाइन करता है. आप जितने अंदर से आपके चाह आएगी, विल पावर आएगी दैट यस यू हैव टू टॉप, उतना ही आप स्ट्रांगली उसके तरफ मूव करोगे. अगर एम ही नहीं होगा कि चलो कॉम्प्लेसेंट है, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिलीव मी यू आर नॉट गोइंग टू एंड अप as a successful person in life. This is not about topping in boards. This is all about getting that feel, that sense of urgency, that zeal of topping, that zeal of success inside you. क्योंकि अगर ये आज नहीं आया तो बिलीव मी ये कभी भी नहीं आएगा. मेरे से किसी कॉलेज में, so I keep going to these colleges, and I speak there on storytelling and how we can through stories get placed. एक प्रोफेसर ने उस कॉलेज में मेरे से पूछा कि सर आप अभी आए हैं, आपने इनसे इतनी बात करी, आप क्या इन पे कुछ इम्पैक्ट कर पाए, क्या आप इनको चेंज कर पाए? तो आई टोल्ड देम ये चेंज अभी नहीं हो सकते. दे आर ऑलरेडी बीन मेड दैट वेज. वो मोल्डिंग जो होती है वो आपकी हो सकती है इन 8 9 10 11 12. अगर आप तब अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए, सही दिशा नहीं दे पाए अपने जीवन को, तो बिलीव मी आप जीवन भर वैसे ही स्ट्रगल करते रहोगे. एंड हेंस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नाउ मेक दैट चेंज. ये देखिए, आपदा के बाद ही अपॉर्चुनिटी आती है. वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, and if we can act properly today, that's when tomorrow we can go for a really successful future. So that action is required. So first thing that we have to do is aim. बच्चे aim ही नहीं करना चाहते. They don't want to even think कि वो कर सकते हैं. अब जब आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर भी कैसे लोगे? So start thinking that you can really do, uh, let's say, top in class. Or if you are a guitarist, start thinking that you'll be the best guitarist. If you are a dancer, start thinking that you'll be a best dancer. पढ़ाई भी एक तरह का माध्यम है to achieve success, but ये सिर्फ माध्यम नहीं है. You can wish whatever you want to do and start doing that is what I'm trying to say. And अगर अभी और कोई wish नहीं है और कुछ आपको नहीं आता है तो आप पढ़ो, क्योंकि फिर और क्या आपके पास, पढ़ना ही तो है फिर. So start aiming, fix the aim, put some posters in your study table, on your study table, that yes you have to do motivational poster, and keep reminding yourself at least 4 5 times a day that मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है. जब आप इतनी चाह से किसी चीज को चाहोगे, believe me it will happen. So this is first rule where you have to think that you can do it. Second rule to do it is start
वर्किंग हार्ड, इतना मेहनत करो कि कोई और उतनी तुमसे ज्यादा ना कर पाए, इतनी मेहनत कर लो. सो उसके लिए क्या थंब रूल्स हो सकते हैं? सम ऑफ द रूल्स व्हिच आई कैन गिव यू इज नंबर वन, when every class is on, let's say your school online classes, your coaching classes, etc., etc., you have to study at least 4 hours of, you have to get self study time, study yourself, right? Self study is the maximum important thing in the whole studying, you can say, uh, profile of yours. अगर आप self study नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. So you have to start self studying at least 4 hours on daily basis. And जब weekend पे there is no school etc., try to go for 10 hours. This is the timetable which I am setting for students who are in class 10th and 12th and will be giving their board exams in 2021. And ये आप अभी से चालू करोगे तब जाके लेट्स से 6 months बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आपको कहूंगा आप 4 को 6 कर लो, 10 को 14 कर लो. एम है टू टॉप. अगर आपका एम वो नहीं है, आप एम वो करना ही नहीं चाहते हो, तो देन लीव इट, then this video is not for you. But if you want to set your aim, then I'm trying to give you some hand rules, or you can say some thumb rules to really get you going on that. So start doing it. आप पहले दिन 4 नहीं कर पाओगे, which is okay. आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, then बढ़ाओ उसको 4 घंटे तक जाओ, right? Hard work. Next rule is hard work तो कर लिया. Can it be more smarter now? कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं सर इतना तो पढ़ते, नंबर तो आते नहीं है. बिकॉज हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, बट गधा तो गधा ही रहता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट वो हार्ड वर्क तो हो, बट वो स्मार्ट वर्क में कब कैसे कन्वर्ट करना है इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. देखिए, वर्क डन इन केस ऑफ स्टडीज is time spent into the intensity of focus. I'll repeat, work done in case of studies is time spent on studies into the intensity of focus. अब अगर आप टाइम 10 घंटे व्यस्त इसमें लगा दो, बट इंटेंसिटी ऑफ फोकस हो ही ना, तो पढ़ाई थोड़ी मानी जाएगी. वो तो आपने बस टाइम पास करा है, बुक आगे खोल के बैठे रहो, 10 घंटे ही बैठोगे तो कुछ समझ थोड़ी आएगा. So can you be more smart, and can you start increasing your focus, and how do you do that? So number one, study for 45 minutes, take 5 minutes break, 15 minutes break, फिर study for 45 minutes, फिर take 15 minutes of break, because your mind is made up like that. It's wired to take breaks. सीधा एक ही साथ आप सोचो कि अच्छा मैं अब 3 घंटे बैठ के पूरी मैथ्स खत्म कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा, तो शायद ना हो पाएगा. बट इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन कि हाँ फर्स्ट 45 मिनट्स में फर्स्ट चैप्टर करूंगा, फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स में नेक्स्ट चैप्टर कर लूंगा, इस तरह से 3 घंटे में मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लूंगा, तो दैट मेक्स मोर सेंस. यू हैव ब्रेकन डाउन योर गोल्स और इनटू स्मॉलर पार्ट्स. अब देखो कई बार बच्चे पूरा इतना बड़ा गोल लेके बैठ जाते हैं, आज मैथ्स खत्म कर दूंगा, और उस पूरे दिन कुछ नहीं हो पाता, एक चैप्टर मुश्किल से नहीं हो पाता. पूरा 8 घंटा वेस्ट होगा एक चैप्टर पे, फिर बचे हुए 2 घंटे में आप पूरा चैप्टर निपटा दोगे, जो कोई सेंस थोड़ी करेगा इस टाइप की पढ़ाई. सो कैन यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. प्लान योर डे, एक टाइम टेबल बना लो, अपने सामने रखो, ट्रैकिंग करो. ट्रैक ही नहीं कर रहे हो तो 1 घंटा भी पढ़ो बहुत है, 10 घंटा भी पढ़ो तो भी बहुत है. सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रैकिंग. 4 घंटे का गोल था, अब अगर आधा घंटा पढ़ोगे तो गिल्ट आएगा, अरे यार और पढ़ना चाहिए. 4 घंटे का गोल था, 5 घंटे पढ़ लोगे, सुकून आएगा, और कल के लिए गोल ही 5 घंटे का बना लोगे. That is how it is. That is the human nature. So start doing tracking of your activities. Smaller goals is what I talked of. Take 15 minutes of break. उसके बाद स्विच सब्जेक्ट्स, 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, स्विच करा, दूसरा करा. पहले थ्योरी कर लिया, फिर उसके बाद लेट से उसी के न्यूमेरिकल लगा लिए, फिर मैथ्स पे आ गए, फिर लेट से कोई और थ्योरी पे चले गए, फिर न्यूमेरिकल लगाया, फिर मैथ्स पे आ गए. सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक दिन में एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट पकड़ के चलो. ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन में सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एक दिन सिर्फ सोशल पढ़ रहे हैं, एक दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं. नहीं, we don't need this. We have to have 2-3 things because your mind demands that. उसको वैरायटी चाहिए. वो एक चीज पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा, फिर आप 10 घंटे बैठोगे और कहोगे कि सर नंबर नहीं आते. So switching off the subjects, and then the next important thing is that can I focus, because लॉकडाउन में सबसे important चीज जो निकल के आ रही है वो ये है कि पूरी फैमिली एक रूम, एक घर के अंदर बंद है. So how do you focus? सब लोग उन्हीं 2-4 रूम्स में घूम रहे हैं, तो हाउ डू यू फोकस? एंड फोकस इज इम्पोर्टेंट, राइट?
बिकॉज अगर फोकस नहीं करा तो 10 घंटे बैठ जाओ, ब्रेक करके भी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा. यू हैव टू फोकस, यू हैव टू बी देयर व्हेन यू आर देयर, right? So to focus, what you can do, try to have minimum distractions in the room that you are sitting. कोई भाई बहन ना हो, कोई मम्मी पापा ना हो. Sit in an isolated spot, make yourself a study table, write whatever you are studying. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फोकस, क्योंकि कई बार होता है अगर आप लिख के पढ़ते हो तो वो दिमाग आपका फोकस ज्यादा करता है, राइट? अगर आप कुछ लिख रहे हो और मैं आपके साथ बात करने लग जाऊं, आप लिख नहीं पाओगे. आप कुछ पढ़ रहे हो, मैं आपके साथ बात करूं, आप फिर भी एक बार पढ़ लोगे, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग योर माइंड वांट्स मोर फोकस टू बी देयर. वो बाकी चीज समझता नहीं है. सो स्टार्ट राइटिंग, अपने आप फोकस आ जाएगा. सारे नोट्स बना लो अभी से, लिख लिख के. होगा क्या, जब तुम इन्हीं नोट्स को वापस रेफर करोगे ना 6 महीने बाद, जब बोर्ड्स की बारी आ जाएगी, जब मिड टर्म्स चालू हो जाएंगे, जब प्री बोर्ड चालू हो जाएंगे, तब तुम्हें यही चीजें तुरंत याद आ जाएंगी. आज अगर सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे, अंडरलाइन करके छोड़ दोगे, 6 महीने बाद फिर वही करना पड़ेगा, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाए थे तब. एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनीवन हु इज गोइंग टू टॉप एंड यू. If you can get your focus right, start writing the notes, start practicing more of maths, whatever you are studying, be it even accounts, eco, physics, chemistry, लिख के पढ़ो, नोट्स बनाओ खुद के, जिससे कि जब वापस रिवाइज करो तो तुरंत याद आ जाए. तो ये आपका फोकस वाला पार्ट हो गया. एंड बिलीव मी, चाहे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन उठा के देख लो, चाहे कोई भी पर्सन सक्सेसफुल जो हो दुनिया में उठा के देख लो, एक चीज जो या उन सब में कॉमन होगी, वो होगा जुनून. एम का जुनून, विजन का जुनून. सब लोग उन्हीं लोगों को पागल कहते हैं, बट बिलीव मी, पागल ही दुनिया बदलते हैं. तो आपके अंदर भी वो पागलपन के लेवल का जुनून आ जाना चाहिए कि हाँ, मुझे इस बार कुछ करके दिखाना है, इस बार बोर्ड टॉप करके दिखाना है. आपके फ्रेंड्स जब कहने लग जाए ना, ये पागल है, इसको कुछ सोचता ही नहीं है, बस बोर्ड में टॉप करने की पड़ी है, बस पढ़ने की पड़ी है, तब समझना आप सही रास्ते पे जा रहे हो. सो स्टार्ट डूइंग दैट. जुनून लाओ अपने अंदर, क्रेजी हो जाओ, मेक इट हैपन, because those who are crazy enough are the ones who are really going to do it. So आज के लिए मैं यहाँ पे एंड करूंगा अपनी वीडियो को. होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो. इन केस यू वांट मी टू स्पीक ऑन सम पर्टिकुलर टॉपिक which you feel is where you need more inputs on, please do leave a comment, do like, subscribe the channel, so that it keeps me motivated to keep producing such videos for you. And hopefully this helps. Thank you. Bye bye. Take care.